So welcome back. We are studying the chapter 3rd, human reproduction, and the first title we started with human reproductive system. देखो, human reproductive system consists of organs like scrotum, testes, duct system, penis and accessory sex gland. मतलब कि हमने कहा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है और इसमें स्क्रोटम, टेस्टिस, डक्ट सिस्टम, पेनिस एंड एक्सेसरी मेल सेक्स ग्लैंड्स है. उसमें से आप जानते इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड इन डिटेल स्क्रोटम, टेस्टिस, duct system and penis. Now in this lecture we will talk for accessory male sex glands, what is semen, semen analysis, and we will also talk for the histology of the primary male sex organ, that is a pair of testes. So let us start. So accessory sex gland associated with male reproductive system are 3. मतलब कि 3 एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है. दे आर अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, सिंगल prostate gland and a pair of Cowper's gland, also called bulbourethral gland. म्हणजे a pair of seminal vesicle, single prostate gland, pair of Cowper's gland और bulbourethral gland या काय आहे male accessory sex glands and they are associated with male reproductive system. सुनो, पहले बात करेंगे सेमाइनल वेसिकल्स की. तो सेमाइनल वेसिकल्स they are fibromuscular paired structure, highly lobulated. Fibromuscular paired structure, highly lobulated, behind the urinary bladder. urinary bladder जो है उसके पीछे, on either sides. And this seminal vesicle produces a whitish alkaline fluid called seminal fluid. This seminal fluid produced by seminal vesicle constitute a bulk of semen, 60% part of the semen. The seminal fluid is rich in sugar fructose, fibrinogen and prostaglandin. तो seminal vesicle are paired structure, fibromuscular structure, lobulated structure. So paired fibromuscular lobulated structure present in a pelvic region behind the urinary bladder on lateral side. So seminal vesicle produces a whitish alkaline fluid called seminal fluid. Seminal fluid is 60%, that is it forms bulk of semen. And the seminal vesicle that produces seminal fluid has sugar fructose, fibrinogen and prostaglandin. तो ये शुगर फ्रक्टोज करता क्या है? तो it provide the energy to the sperm.
फाइब्रिनोजेन का रोल क्या है? आफ्टर इजैक्यूलेशन द सीमेन क्लॉट, तो इट एक्ट एज अ क्लॉटिंग फैक्टर. प्रोस्टैग्लैंडिन का रोल क्या है? सो व्हेन द सीमेन इज इजैक्यूलेटेड इन वजाइना, it induce vaginal contraction that accelerate the moment of the sperm, facilitate fertilization. तो पहिले सर तुम्ही म्हटलं की सेमाइनल व्हेसिकल 2 असतात, ते फायब्रोमस्क्युलर लोब्युलेटेड स्ट्रक्चर असतात, ब्लॅडरच्या मागं इकडून आणि तिकडून असतात. त्यांच्या सिक्रिशनला म्हणतात सेमाइनल फ्लुइड. ते व्हाईटिश अल्कलाइन फ्लुइड असतं. सेमाइनल फ्लुइड सिमेनच्या 60% असतं आणि त्याच्यामध्ये शुगर फ्रक्टोज आहे जी स्पर्मला एनर्जी देते. फायब्रिनोजेन आहे ते सिमेनला गोठवते. और प्रोस्टैग्लैंडिन इट इंड्यूस वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन. सो दिस इज seminal vesicle, a paired structure. Now prostate gland. सुनो, prostate gland is a muscular and glandular structure present below the neck of urinary bladder. It is surrounding the prostatic urethra. So this is about a location. Prostate gland is present below the neck of urinary bladder surrounding the prostatic urethra, and it is muscular and glandular structure. The size of prostate gland is 4 centimeter by 3 centimeter. So 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट उसकी जो है वो 3 सेंटीमीटर है और उसका जो चौड़ान है, मोटापा, वो ज़्यादा है. म्हणजे आवले से आप उसकी तुलना कर सकते. 3/4 किंवा एखादं बोर असेल, सो बेर, उसकी तुलना आप कर सकते. सो इट इज 3/4 सेंटीमीटर. इट कंटेन, द प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन 20 to 30 लोब्यूल्स, कंपार्टमेंट्स. जैसे हम लोग कोई संतरा छीलते हैं तो उसके अंदर जैसे कप्पे 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 असतात, म्हणजे संतरा छिलल्यावर त्याच्यात फोडी असतात, तो वैसे प्रोस्टेट में 20 से 30 कप्पे है. एंड ऑल दीज लोब्यूल्स, कप्पे, दे ओपन सेपरेटली इन प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. नेक्स्ट, prostate gland produce prostatic fluid which is slightly acidic and it neutralizes the acidity of vagina. अब इस पॉइंट पे ज़रा ध्यान दो आप. सर, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रेट करता. 20 से 30 छोटे छोटे डक्ट्यूल उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ले जाते, और वो जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो स्लाइटली एसिडिक है और वो वजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता. वजाइना इज हाईली एसिडिक. नेक्स्ट, द प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज 30% of the semen and it contain ions, say calcium dipositive. It contain enzymes, say acid phosphatase, proteolytic enzymes and citric acid. तो सर, प्रोस्टेट ग्लँड बद्दल तुम्ही म्हटलं की ही अनपेअर असते, नेक ऑफ ब्लॅडरच्या खाली असते, प्रोस्टॅटिक युरेथ्राच्या सराउंडिंग असते. ती 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर असते. त्याच्या आतमध्ये 20 ते 30 कप्पे असतात, लोब्यूल,
आणि हे लोब्यूल सेपरेटली ओपन होतात प्रोस्टॅटिक युरेथ्रामध्ये. याच्या सिक्रेशनला प्रोस्टेट ग्लँडच्या प्रोस्टॅटिक फ्लुइड म्हणतात. आणि हे प्रोस्टॅटिक फ्लुइड जे असतं ना, इट इज 30% पार्ट ऑफ द सिमेन. आणि या प्रोस्टॅटिक फ्लुइडमध्ये काय असतं, तो ॲसिड फॉस्फेटेज एन्झाईम, प्रोटिओलायटिक एन्झाईम असतो, आयन्स असतात. आयन्स इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पर्म. वो जो प्रोटिओलाइटिक एंजाइम है, इट इज़ फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ द सीमेन. तो फाइब्रिनोजेन क्लॉट द सीमेन और 15 मिनट में वो जो इजैकुलेटेड सीमेन है, जो गाढ़ा था, वो पतला पानी जैसा हो जाता. दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन. और वो लिक्विफिकेशन कौन करता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. तो दिस इज अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड. सो प्रोस्टेट ग्लैंड is muscular glandular lobulated structure present below the neck of the bladder surrounding prostatic urethra. So it is 3 by 4 centimeter in morphometry. It has 20 to 30 lobules that separately open in prostatic urethra. The secretion of prostate gland is prostatic fluid. It is slightly acidic and neutralizes the acidity of vagina, and the prostatic fluid also contain certain enzymes, acids and ions. The proteolytic enzyme is for liquefaction of semen and it forms 30% of the semen. Now Cowper's gland or bulbourethral gland. So bulbourethral glands. Cowper's gland or bulbourethral gland are peanut shaped on either side of membranous urethra, but they open in penile urethra. मतलब कि काउपर्स ग्लैंड जो रहती है या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो रहती है, वो मूंगफली के दाने के जितने होती है. वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के आजू बाजू रहती, पर वो ओपन होती पेनाइल यूरेथ्रा में. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूस अ लुब्रिकेंट, जो किसी चीज को लुब्रिकेट करता है. इट प्रोड्यूसेस मेनली द लुब्रिकेट. पर ये लुब्रिकेंट करता क्या है? सुनो. इट मेक्स द यूरेथ्रा स्लिपरी. तो जिस ट्यूब से सीमेन आने वाला है उसको चिकनाहट देता है. इट मेक्स यूरेथ्रा स्लिपरी. इट स्मीयर ऑन ग्लैंड्स पेनिस. तो इंटरकोर्स के समय, कोइटस के समय पुरुष के पेनिस के ऊपर, ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर ये लुब्रिकेंट फैल जाता है और इससे it provide lubrication at the time of coitus. Also, the secretion of bulbourethral gland is alkaline. It neutralizes the acidity of male's urethra also, which might be because of previous micturition. मतलब कोई पुरुष है जो यूरिन जब पास करता है तो यूरेथ्रा में से यूरिन गई जो एसिडिक है, तो यूरेथ्रा एसिडिक बन जाता है. और फिर जब भी वो इंटरकोर्स करेगा उस वक्त वो जो सीमेन आने वाला है तो उसके लिए वो यूरेथ्रा नाम का पैसेज होना चाहिए न्यूट्रल. तो इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा ड्यू टू प्रीवियस मैच्योरेशन एंड आल्सो इट न्यूट्रलाइजेस वजाइनल एसिडिटी. ये दो काम करता है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन. आई विल रिवाइज. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. दे ओपन इन पेनाइल यूरेथ्रा. साइज पीनट शेप. क्या सिक्रेट करते हैं? लुब्रिकेंट, जो यूरेथ्रल पैसेज को लुब्रिकेट करता, वजाइना को लुब्रिकेट करता और ग्लैंड्स पेनिस को लुब्रिकेट करता. एंड द सिक्रीशन इज अल्कलाइन.
So it neutralizes the acidity of male's urethra because of previous micturition and it neutralizes the acidity of vagina. अब देखो हमने सीखा है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इनका लोकेशन देखने के लिए, स्ट्रक्चर देखने के लिए वापिस एक बार हम लोग स्केच करेंगे। तो दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर and this is a 20 centimeter long urethra. Now these are seminal vesicles and a duct called vasa differentia. A duct called vasa differentia and duct of seminal vesicle forms ejaculatory duct. Now here there is prostate gland. So surrounding prostatic urethra, here there are Cowper's gland which open in penile urethra. So pair of seminal vesicle क्या देते? Seminal fluid 60% of the semen. This is prostate gland. क्या देती है? Prostatic fluid which is 30% of the semen. And ये है bulbourethral gland. ये क्या देते? Lubricant. एक बार MHT CET में क्वेश्चन पूछा था, द ग्लैंड एंड रोल ऑफ देयर सिक्रीशन। तो विचार करा, सेमाइनल वेसिकल, उसके सिक्रीशन का रोल क्या है? सर प्रोवाइड एनर्जी बिकॉज इट कंटेन शुगर फ्रक्टोज। प्रोस्टेट ग्लैंड, सर न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो सर इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन। तो ऐसा एक क्वेश्चन था। अब देखो, पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड हमने एक्सक्लूसिवली यहां कंप्लीट कर ली है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ी सी बात सीमेन के बारे में करेंगे, सुनो। What is semen? So सीमेन का मतलब क्या होता है? तो सर जैसे कि ब्लड है जिसमें प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है, वैसे सीमेन में भी सेमाइनल प्लाज्मा है और ब्लड सेल की बजाय स्पर्म से। तो सेमाइनल प्लाज्मा टुगेदर विथ स्पर्म, it's called semen. It is whitish and it is active at slightly acidic pH. So 6 to 6.5 pH पे वो जो स्पर्म्स है वो एक्टिव रहते हैं और इसीलिए सीमेन इज स्लाइटली एसिडिक। द pH is between 6 to 6.5. Semen is equal to seminal fluid 60%, prostatic fluid 30%, sperms 10%, and traces of Cowper's gland produce a lubricant, a mucus, and together this is what is called semen. म्हणजे सेमाइनल वेसिकलचं सेमाइनल फ्लुइड 60%, प्रोस्टेट ग्लँडचं प्रोस्टॅटिक फ्लुइड 30%, 10% स्पर्म आणि काउपर्स ग्लँडचं म्युकस जे असेल ते म्हणजे लुब्रिकंट असेल. टुगेदर इट इज द सीमेन. अब सुनो, ह्यूमन इन सिंगल इजैक्यूलेशन
मतलब जब पुरुष एक बार कोइटस करता है, इंटरकोर्स करता है, तो ही डिस्चार्ज अबाउट 3 to 4 ml सीमेन। तो उस वक्त वजाइना में डिस्चार्ज होता है 3 से 4 ml सीमेन, और इसमें जो स्पर्म्स रहते हैं मेल गमीट, वो रहते हैं 300 to 400 मिलियन। तो सर 3 ml से 4 ml सीमेन में 300 से 400 मिलियन स्पर्म रहते, मतलब पर ml 100 मिलियन होते होंगे। हाँ, बट इस बात का ध्यान रहे कि एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म 60% of the sperm should have a normal size and shape. म्हणजे एखाद्या पुरुषाचं जे 3-4 ml सीमेन असतं त्याच्यात 300 ते 400 मिलियन स्पर्म असतात, त्यातले 60% तरी असले पाहिजे साईज आणि शेपमध्ये नॉर्मल, और 40% ऑफ देम मस्ट हैव विगरस मोटिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। ये ध्यान रखो। अब यहाँ पे नीट में, मतलब ऑल इंडिया पीएमटी में 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेमाइनल प्लाज्मा, तो स्पर्म अगर छोड़ दो तो बाकी चीजें जो है उसको प्लाज्मा बोलते। सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन, तो सर सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन sugar, fructose, calcium and enzymes। तो सीमेन माइनस sperm is seminal plasma. It is rich in sugar, fructose, calcium dipositive and certain enzymes। अब यहां पर थोड़ी सी सुनने में बुरी बात है, but it's a part and parcel of the syllabus। सुनो, suppose a rape victim has been brought to the hospital and the doctor has to confirm that she had been raped or sexually abused। Now, if the vaginal swab contains sugar fructose, it confirms the penile penetration, because in human body the sugar fructose is present only in semen। म्हणजे ऐकायला काही चांगलं नाही, पण आपण एक पार्ट अँड पार्सल ऑफ सिलेबस आहे, तर त्या दृष्टीने आपण ऐकायला पाहिजे की समजा एखाद्या माऊलीला दवाखान्यामध्ये आणलं आणि तिच्यावर दुर्दैवी बलात्कार झाला, तर मग तिकडचे डॉक्टर जे आहे हे कन्फर्म कसं करतील, तर अनेक त्याचे कायदे असतात, टेस्ट असतात, त्याच्यात आपल्याला नाही जायचं। पण जर झालं असेल सेक्शुअल ॲब्यूज किंवा रेप, तर पुरुषाचं वजायनामध्ये सांडलं असेल सिमेन आणि सिमेनमध्ये असते शुगर फ्रक्टोज, तर तिकडे वजायनात जर शुगर फ्रक्टोज असेल तर याचा अर्थ पुरुषाच्या शरीरात दुसरीकडे कुठं तर शुगर फ्रक्टोज नाही आहे, फक्त सिमेनमध्येच आहे, म्हणजे झालं होतं पेनायल पेनिट्रेशन। सो ही एक बायोकेमिकल टेस्ट है आणि म्हणून हे सांगितलं। तो ठीक है सर, अभी हमको सीमेन विस्तार से समझ में आया कि एक बार के इजैक्यूलेशन में 3 से 4 ml सीमेन रहता, उसमें 300 से 400 मिलियन स्पर्म रहते, उसमें 60% तो साइज एंड शेप से नॉर्मल होने चाहिए, 40% तो विगरस मोटिलिटी वाले होने चाहिए। सेमाइनल प्लाज्मा जो रहती, इट इज़ रिच इन शुगर, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। और अब हम बात करेंगे अगले टाइटल की, तो सुनो।
histology of testis. So you know, histology is what? Sir, histology is the branch of biology that deals with the study of microscopic details of tissue forming an organ. तो ऑर्गन टिश्यू से बना और उस टिश्यू के स्टडी को कहते हिस्टोलॉजी। मतलब हमें देखना है कि टेस्टिस में कौन से टिश्यूज है, पर हम क्यों सीख रहे उसकी हिस्टोलॉजी? तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। म्हणजे टेस्टिसची हिस्टोलॉजी आपण का शिकावी? तर 2 प्रश्नांची आपल्याला उत्तर पाहिजे। एक क्वेश्चन है कि टेस्टिस कैसे बना सकता है स्पर्म फ्रॉम प्युबर्टी ऑनवर्ड्स टिल ओल्ड एज। म्हणजे टेस्टिस कसं काय स्पर्म बनवू शकते सेक्शुअल मॅच्युरिटी नंतर 60 वर्षापर्यंत? उसमें ऐसा क्या है कि स्पर्म प्रोडक्शन होता? और दूसरा, तो टेस्टिस कैसे दे सकता एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, अ मेल सेक्स हार्मोन। एंड फॉर श्योर you will be getting the answer for these 2 questions if you study the histology of testis। मतलब कि आप कहते हैं कि हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द टिश्यू इन एन ऑर्गन। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस सीखने का उद्देश्य है, वी वांटेड टू नो हाउ कुड द टेस्टिस प्रोड्यूस द स्पर्म। मतलब टेस्टिस स्पर्म कैसे बना सकता और वो कैसे दे सकता मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। और इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमको सीखना है एलएस ऑफ टेस्टिस। और ये जो एलएस है, वर्टिकल सेक्शन है, वो हमें बताएगा एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस, इंटीरियर ऑफ द टेस्टिस, नॉट द हिस्टोलॉजी। तो देखो, सपोज आई एम होल्डिंग अ ह्यूमन टेस्टिस इन अ लेफ्ट हैंड एंड इट हैज़ बीन गिवन अ वर्टिकल सेक्शन विथ अ शार्प रेजर एंड वी हैव सीन इनसाइड। तो व्हॉट वी वुड सी इनसाइड? म्हणजे पुरुषाच्या टेस्टिसला जर आपण उभा छेद दिला आणि आतमध्ये आपण बघितलं तर मग आपल्याला काय दिसतं? तो पहले तो ह्यूमन टेस्टिस हैज 3 कवरिंग्स। द आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका वैजिनालिस। You know, tunica vaginalis is peritoneal in origin that confirm the abdominal origin of the testis। म्हणजे तुम्हाला आठवत असेल प्रीवियस लेक्चरमध्ये आपण काय म्हटलं की ट्यूनिका वॅजिनालिस हे कोणतं कवर आहे? पेरिटोनियल कवर आहे। पेरिटोनियल कवर आहे म्हणजे ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि पुरुष के टेस्टिस है तो स्क्रोटम में, पर वो बने थे एब्डोमेन में। दूसरा, द सेकेंड, अ कनेक्टिव टिश्यू cover is called tunica albuginea, and the innermost richly vascularized cover जिसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स है, वास्कुलराइज है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वैस्क्यूलारिस। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि व्हेन टेस्टिस हैज बीन गिवन एलएस and seen inside, it is covered with the 3 covering. From outside to inside, they are tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vascularis। अब आगे देखो, आप ये भी जानते कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया, अ कनेक्टिव टिश्यू कवर ऑफ द टेस्टिस, इट्स अ कंप्लीट कवर ऑफ द टेस्टिस। It produces large number of septa. Septa म्हणजे partition. So from tunica albuginea, large number of septa
septa partition arises and they divide the cavity of testis into large number of compartment. तो सर ट्यूनिका अल्बेजिनिया से जो पार्टीशंस निकले अंदर की तरफ, उसने टेस्टिस की कैविटी को बहुत सारे कप्पों में बांट दिया. ऐसे कप्पे हैं 200 से 300 और उन्हें कहते टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. आगे सुनो. Each lobule contain highly coiled wire-like structure called seminiferous tubule or crypt, और उनकी संख्या होती है 1 से 3. तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है. पहला पॉइंट, एक्सटर्नली the testis is covered with tunica vaginalis, tunica albigenea, tunica vascularis. Second point, from tunica albigenea, a connective tissue cover, large number of partition extends to inside and they divide the testis into 200 to 300 compartment. तीसरा point, each compartment or testicular lobule contain 1 to 3 seminiferous tubules and interstitial tissue. म्हणजे सर प्रत्येक कप्पा कोणताही पहा सारखाच असतो. प्रत्येक कप्प्यात काय दिसतं, 1 ते 3 सेमिनिफेरस ट्युब्यूल दिसतात आणि त्या वायर्सच्या मध्ये मध्ये, म्हणजे हे जे सेमिनिफेरस ट्युब्यूल नावाच्या वायर आहे त्याच्या मध्ये मध्ये भरलेला आहे कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणजेच इंटरस्टिशियल टिश्यू. आणि त्या इंटरस्टिशियल टिश्यूमध्ये असतात इंटरस्टिशियल सेल्स कॉल्ड लेडिग्स सेल्स. अब देखो और अब ध्यान दो, अगर टेस्टिस में 200 से 300 लोब्यूल है और सारे लोब्यूल एक समान है, जर टेस्टिसमध्ये हे कप्पे असतील 200 ते 300 आणि प्रत्येक कप्पा सारखा असेल, तो सारे कप्पे क्यों देखे? क्यों ना हम एक लोब्यूल को ट्रांसवर्स कट दे. अब इसे मैं ऐसे बता सकता, मान के चलो कि ये है एक कप्पा, एक लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल. इसके अंदर क्या है सर? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड लेडिग सेल्स. तो जैसा ये कप्पा है वैसे 200-300 है, तो हर एक देखने की जरूरत नहीं. मैंने ये कहा कि ये जो कप्पा है माने लोब्यूल है, इस लोब्यूल को अब हमें देना है ट्रांसवर्स कट. तो सर ये क्या था? दिस इज एलएस ऑफ टेस्टिस. और अब क्या है? टीएस ऑफ टेस्टिस. तो सर आप एक तरफ एक लोब्यूल को कट कर रहे, एक लोब्यूल को, और कहते हैं दिस इज टीएस ऑफ टेस्टिस. हां, जसा एक लोब्यूलचा टीएस असेल तसा सगळ्यांचा असेल. सो टीएस ऑफ लोब्यूल इज टीएस ऑफ टेस्टिस. और इसीलिए हमने एक लोब्यूल का टीएस लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन, और उसके अंदर देखा, तो क्या अपेक्षा है आपकी? तो सर मला असं वाटतं की त्या लोब्यूलमध्ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, म्हणजे वायर्स है. वो वायर्स कट गई है, हम उन वायर के अंदर देख सकते, और उन वायरों के बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, इंटरस्टिशियल टिश्यू है, और उसमें कुछ एंडोक्राइन सेल्स है. अब वो पिक्चर देखो आप.
ओके, सो दिस इज अ टीयस ऑफ अ लोब्यूल. अब इसमें हमें निकालने हैं 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो 1, 2, 3. अब जैसा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वैसे 600 से 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. म्हणजे जसा एक लोब्यूल तसे 200-300 लोब्यूल. जसा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आतमध्ये असेल तसे सगळे असतील 600 ते 900. तो वापस एक बार. When testis is given LS and seen inside, it has outer tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vascularis. Second, tunica albuginea sends many partitions or septa and divide the cavity of testis into 200 to 300 compartment called testicular lobule. तीसरा point, each lobule contain 1 to 3 seminiferous tubule, interstitial tissue and interstitial cell or Leydig cells. चौथा point, if one lobule contain 3 seminiferous tubule, so 200 or 300 lobule will have 600 to 900 seminiferous tubule. अरे जर एका लोब्यूलमध्ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे तर 200 ते 300 लोब्यूलमध्ये किती होतील सर? 600 ते 900. तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द टेस्टिस. पांचवा पॉइंट, when the testis has been given TS, अब LS नहीं, TS of testis. पण सर हा तर TS ऑफ लोब्यूल आहे. तर मी सांगितलं ना, जसा एका लोब्यूलचा TS तसा सगळ्या लोब्यूलचा TS, म्हणजे तसा टेस्टिसचा TS. सो व्हेन द टेस्टिस हैज बीन गिवन TS ट्रांसफर सेक्शन, आप दे सकते सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल टिश्यू, ये सारा इंटरस्टिशियल टिश्यू है, विच कंटेन ब्लड वेसल्स एंड फ्यू एंडोक्राइन सेल्स. कॉल्ड Leydig cells. अब पांचवा पॉइंट, जसा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तसे सगळे 600 ते 900. मग एकच शिका ना. तो अब ध्यान दो, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज इंटरनली लाइंड विथ, each seminiferous tubule is internally lined with large number of germinal epithelial cell. अच्छा, तो seminiferous tubule internally is lined with large number of germinal epithelial cell. और ये जो जर्माइनल इपिथेलियल सेल्स है वो क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल. आप चाहे तो उसको प्राइमॉर्डियल जर्म सेल्स कह सकते, आप चाहे तो उनको स्पर्मेटोगोनिया कह सकते. बरं सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलच्या आतमधून क्यूबॉइडल जर्माइनल इपिथेलियल सेल असतात किंवा प्राइमॉर्डियल जर्म सेल असतात किंवा आपण म्हणू त्यांना स्पर्मॅटोगोनिया असतात. आगे देखो, एंड फ्यू पिरामिडल सेल्स. तो पहला पॉइंट, when testis is given LS and seen inside, it is covered with
ट्यूनिका वैजिनालिस अ पेरिटोनियल कवर, ट्यूनिका अल्बेजेनिया अ कनेक्टिव टिश्यू कवर, and tunica vascularis. Second point, from tunica albaginea, large number of septa extend to inside. They divide the cavity of testis into 200 to 300 compartment called testicular lobules. तीसरा point, each lobule has 1 to 3 seminiferous tubule. The entire testis has 600 to 900 seminiferous tubule, and hence seminiferous tubule is structural and functional unit of testis. Next, the lobule also contain, माने besides seminiferous tubule, it also contain the interstitial tissue and interstitial endocrine cells called Leydig cells. Next, when we give a transverse section to the testis or TS of a lobule, we would see, माने जब हम लोग टेस्टिस को TS देंगे तब की बात, ये तो LS हुआ. So the testis in TS shows seminiferous tubule, interstitial tissue containing blood vessel, nerves, and some endocrine cells called interstitial cells or Leydig cell. म्हणजे काय काय दिसतं TS मध्ये? सर सेमायनिफेरस ट्युब्यूल दिसतात, कनेक्टिव्ह टिश्यू दिसतो आणि काही एंडोक्राइन सेल्स दिसतात. अब हमने फोकस किया सेमायनिफेरस ट्युब्यूल को. तो जर तुम्हाला हा सेमायनिफेरस ट्युब्यूल समजला तर तुम्हाला 600 ते 900 समजले, म्हणजे तुम्हाला टेस्टिस समजला आणि तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरं भेटतील. देखो, each seminiferous tubule is internally lined with 2 type of cell. So which are those 2 type of cell? So they are germinal epithelial cells. Germinal epithelial cells and Sertoli cells या नर्स सेल्स. म्हणजे प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या आतमध्ये किती प्रकारच्या सेल आहे? 2च प्रकारच्या. खूप साऱ्या जर्माइनल इपिथिलियल सेल आणि फार थोड्या सर्टोली सेल या नर्स सेल. So large number of germinal epithelial cell and very few tower shape pyramidal जो सेंटर तक आते हैं, लुमेन तक. So they are Sertoli cell or nurse cell. अब सुनो, germinal epithelial cell undergo spermatogenesis. जर्माइनल इपिथिलियल सेल फर्टाइल रहती, कुछ तो भी बना के देगी, और वो करती है स्पर्मेटोजेनेसिस. उसके लिए क्या चाहिए? तो सर एट प्यूबर्टी माने सेक्सुअल मैच्योरिटी, पुरुष की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो देती है FSH. सो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है FSH. Also, the second hormone is required for spermatogenesis, androgen. तो सर FSH from anterior pituitary and androgen from testis itself. म्हणजे स्वतः टेस्टिसच्या लेडिक सेल्सचं एंड्रोजन आणि पिट्यूटरीचं FSH, दोनों के इन्फ्लुएंस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. कौन करता? जर्माइनल एपिथेलियल सेल. करो, देखो. सबसे पहले द जर्माइनल एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेट, मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस. जैसे
एक जर्माइनल इपिथेलियल सेल है, एक जर्माइनल इपिथेलियल सेल। माइटोसिस के बाद 2 सेल, वापस माइटोसिस झाल्यावर 2 सेल, और माइटोसिस हुआ 2 सेल। सो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, दिस इज मल्टिप्लिकेशन फेज। म्हणजे सर तुम्ही असं म्हटलं की त्या जर्माइनल इपिथेलियल सेल ज्या असतात त्या फक्त मल्टिप्लाय होतात आणि त्यांनी तयार करून दिले स्पर्मैटोगोनिया, सिंगुलर स्पर्मैटोगोनियम। तो देखो ये है प्राइमोर्डियल जर्म सेल और जर्माइनल इपिथेलियल सेल, और ये जो सारे बने वो है स्पर्मैटोगोनिया। अब देखो स्पर्मैटोगोनिया इंक्रीज इन साइज माने ग्रोथ्स, दैट इज अ ग्रोथ फेज। पहले मल्टीप्लिकेशन फेज इन्वॉल्व्स माइटोसिस, तो अब ये जो स्पर्मैटोगोनिया है वो करते हैं ग्रोथ। सो स्पर्मैटोगोनिया ग्रोज एंड दे बिकेम प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स। तो जर्माइनल इपिथेलियल सेल डिप्लॉइड, बनने वाले स्पर्मैटोगोनिया डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट डिप्लॉइड। जर्माइनल इपिथेलियल सेल ने मल्टीप्लिकेशन करके स्पर्मैटोगोनिया पैदा किए, स्पर्मैटोगोनिया ने ग्रोथ की और वो बन गए प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट। अब आगे प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट ये जो प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट है उन्होंने बनाए सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, हैप्लॉइड। तो सर प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट डिप्लॉइड है, उन्होंने बनाए सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट, वो है हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि हुआ है मियोसिस फर्स्ट, एंड यू नो मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन। जैसे देखो यहां एक जर्माइनल इपिथेलियल सेल, माइटोसिस हो गई 2 सेल, माइटोसिस हो गई 4 सेल, तो ये 4 सेल्स कौन है? स्पर्मैटोगोनिया। अब हर स्पर्मैटोगोनियम इंक्रीजेस द साइज, तो हमने उदाहरण के लिए एक ही स्पर्मैटोगोनियम को बड़ा किया, ये दिखाने के लिए सिर्फ। सो एवरी स्पर्मैटोगोनियम इंक्रीजेस द साइज एंड इट बिकेम प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट जो है, ईच स्पर्मैटोगोनियम इंक्रीजेस द साइज एंड बिकेम प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट। ये तो डिप्लॉइड है, पर इसने किया मियोसिस 1। तो जब मियोसिस 1 होगा, एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई, एक साइटोप्लाज्म के 2 साइटोप्लाज्म, एक सेल से 2 सेल्स, एंड क्रोमोसोम नंबर हो गया हाफ। सो दिस इज मियोसिस 1। तो प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 एंड फॉर्म्स सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट। अब ध्यान दो, नीट क्वेश्चन। इन स्पर्मैटोजेनेसिस which is first haploid stage?
तो सर जर्माइनल इपिथेलियल सेल डिप्लॉइड, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड। तो पहली हैप्लॉइड स्टेज कौन सी आई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी इस साल 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन एक है जो हैप्लॉइड है, और ऐसे 3 के ऑप्शन दिए थे मेल फीमेल मिलाकर। वो आगे मैं बताऊंगा आपको ॲट द टाइम ऑफ ओजेनेसिस। तो तुम्हाला आता समजतं की प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट डिप्लॉइड, पण सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट असतो हॅप्लॉइड. तो सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स आर हॅप्लॉइड, माने 23 क्रोमोसोम, यहाँ 46, 46, 46, 46. आगे क्या हुआ? तो सेकंडरी स्पर्मैटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोसिस, secondary spermatocyte undergo second meiosis, and you know second meiosis is equational division like mitosis. म्हणजे एक सेल से 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम, एक सेल से 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम. तो अब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्माटिड्स, स्पर्माटिड्स. और अब आगे सुनो, 1 2 3 4 क्या है? स्पर्माटिड. 1 2 कौन है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ये कौन है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो नाउ ईच स्पर्मेटिड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. मतलब ये म्हणजे हा स्पर्मेटिड ना मियोसिस ना माइटोसिस, अपना रूप बदलेगा. क्यों? क्योंकि ये नॉन मोटाइल है एंड स्पर्म्स आर मोटाइल, और इसीलिए एवरी स्पर्मेटिड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड बिकेम स्पर्मेटोजुआ. तो 1 spermatid produce 1 spermatozoa, 4 spermatid produce 4 spermatozoa. सो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पासून, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने? 4. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बने? 4. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने? 2. तो ये हो गया फर्स्ट मियोसिस एंड दिस इज सेकेंड मियोसिस. अब ये जो है स्पर्मेटिड, उन्होंने अपना रूप बदला, मेटामॉर्फोसिस, और बन गए स्पर्मेटोजुआ. आता लक्ष ठेवा, कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ इज स्पर्मियोजेनेसिस. नीट क्वेश्चन. तो सर आप कहते स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बनने के लिए जो मेटामॉर्फोसिस हुआ, रूप में बदलाव, उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ बाय मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. तो अब इनसे जो बनेंगे, मतलब स्पर्मेटिड से जो बनेंगे स्पर्मेटोजुआ, दे आर अटैच्ड टू सर्टोली सेल. तो ये जो स्पर्मेटोजुआ आहे, शुक्रजंतू, स्पर्म्स, तर त्यांचे हेड कशात घुसले आहे? सर्टोली सेल. तो देखो ये जो सर्टोली सेल्स है,
ये कर क्या रही? दे सपोर्ट एंड नरिश स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेजेस है उसको वो सपोर्ट एंड नरिश करती है, इसीलिए नाम है सर्टोली सेल और नर सेल। कहते हैं ये सर्टोली सेल इन स्पर्म को सपोर्ट और नरिश तो करती है, साथ में एक हार्मोन भी देती है, इनहिबिन। ये हार्मोन क्या करता? एफएसएच को रोक देता, पिट्यूटरी के, नेगेटिव फीडबैक वाला है। तो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड फाइनली स्पर्मेटोजुआ। और ये 2 बार नीट क्वेश्चन है। द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ। स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजुआ। इनमें से कौन डिप्लॉइड है? स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजुआ हैप्लॉइड है, 23 क्रोमोसोम वाले हैं। अब ये सीक्वेंस भी हमने लिखा, आगे सुनो। तो ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल shows stages of spermatogenesis from periphery to center। तो पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और लुमेन में है स्पर्मेटोजुआ अटैच टू सर्टोली सेल इन बंडल। और जब वो यहां से रिलीज होंगे, तो अगर वो रिलीज हुए तो वो बह के कहां आएंगे? रेटेटेस्टिस। म्हणजे त्या वायरमधून जर ते रिलीज झाले, वो जो वायर है ना, हमने ये सेक्शन ऑफ द वायर लिया, जैसे ये कोई वायर है, हमने उसका सेक्शन लिया, तो जब वो रिलीज होंगे तो वो रेटेटेस्टिस में आएंगे। तो सुनो, रिलीज ऑफ द स्पर्म, रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब यहां से वो छूट गए, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये भी नीट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ बाय मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज स्पर्मिएशन? रिलीज ऑफ द स्पर्म। What is spermatogenesis? The process of formation of spermatozoa। तो हमें पहले सवाल का जवाब मिला क्या ढूंढो? हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस हमें बताएगी कि टेस्टिस में कैसे बने स्पर्म, बताओ। तो सर टेस्टिस में स्पर्म क्यों नहीं बनेंगे? टेस्टिस में है 600 to 900 seminiferous tubule। Okay, every seminiferous tubule has germinal epithelial cell, and germinal epithelial cell undergo spermatogenesis and hence sperms are produced. But why after puberty? Because FSH comes after puberty, androgen comes after puberty. Now the second question, कि how could the testis gives the male sex hormone androgen, that is testosterone? तो सुनो, seminiferous tubule, seminiferous tubule, seminiferous tubule. Between the seminiferous tubule there are Leydig cells। Leydig cells। और यदि पिट्यूटरी का हार्मोन है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी अगर
लेडिक सेल को स्टिमुलेट करे तो फिर लेडिक सेल देती है टेस्टोस्टेरॉन। लेडिक सेल्स देती है टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय अ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी कॉल्ड LH। और इसीलिए LH को और एक नाम होना चाहिए। कैसे? लेडिक सेल्स से दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल को LH ने स्टिमुलेट किया, इसीलिए इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है वो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करता है। ये टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल एक्सेसरी डक्ट्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड, इनकी भी ग्रोथ करता है। ये बहुत इंपॉर्टंट हार्मोन है। तो आपल्याला दोन्ही प्रश्नांची उत्तर देते हिस्टोलॉजी। अब बोर्ड के स्टूडेंट्स, आपको यदि पूछे ड्रॉ एंड लेबल हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, तो आपने ये नहीं स्केच करना है। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के लिए TS ऑफ टेस्टिस। सो दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल, इंटीरियर ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, दिस आर लेडिक सेल्स। और वो स्टेजेस, यहां और एक बात का जिक्र हुआ है, वो ध्यान रहे कि FSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ना केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, बल्कि वो सर्टोली सेल को भी स्टिम्युलेट करता। म्हणजे सर एंटीरियर पिट्यूटरीचं जे FSH आहे ते फक्त स्पर्मॅटोजेनेसिस करते असं नाही, ते सर्टोली सेलला टारगेट करते और सर्टोली सेल फिर ऐसा एक फैक्टर देती। सर्टोली सेल प्रोड्यूस अ फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। म्हणजे सर सर्टोली सेलनं तो फॅक्टर दिल्यावर स्पर्मियोजेनेसिस होतं, म्हणजे स्पर्मॅटिड बिकेम स्पर्मैटोजोआ। अब यहां सारे नीट रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे। ये स्टेजेस स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, कौन हैप्लॉइड, कौन डिप्लॉइड, कौन 46, कौन 23, व्हाट इज परमिएशन, व्हाट इज परमियोजेनेसिस, हार्मोन्स, वो सब हमने देखे। अब मेरे अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा वंस अगेन, वापस एक बार, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गमीट, दैट इज स्पर्म। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।